Hello students, welcome back to Shaurya, and today we are going to study chapter number 5 of class 11th, and in that chapter particularly we will understand friction and we will perform an activity based on friction, okay? And the activity is going to be very entertaining and very useful for you to understanding what are the laws of friction. Okay, friction is basically are of two types. One is static friction and another is kinetic friction, okay? And what are the basic laws of these friction? These both laws have both type of friction has a very common law, okay, which is these both frictions are independent of area of contact of the surfaces, but it depends on the nature of the surfaces, okay, in contact. इसका मतलब ये है कि चाहे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं कि कितना एरिया दो ऑब्जेक्ट्स का आपस में कांटेक्ट में है, यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट दूसरे लोअर सरफेस पर मूव करने की कोशिश कर रही है या उस पर मूव कर रही है, तो उन दोनों का कितना एरिया कांटेक्ट में है उस बात पर काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों डिपेंड नहीं करते, बट किस चीज पर डिपेंड करते हैं कि उन दोनों सरफेसेस का नेचर क्या है। तो ये हम प्रूव करेंगे। मोरओवर ये मैंने इंक्लाइन प्लेन के लिए एंगल डिनोट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। दिस वन इज हॉरिजेंटल डायरेक्शन एंड इसके साथ ये एंगल 30 डिग्री है, एंड सेकेंड वन एंगल इज 45 डिग्री एंड थर्ड वन एंगल इज 60 degree, and this is of course 90 degree angle. Okay, so I have made an inclined plane on which simply I will prove this law. Okay, this law I have written on the board. Additionally, we will see also what is angle of repose. Okay, so let's begin the activity. So first of all, I would like to show you this device. Okay, this is inclined plane. Okay, and this I have made for particularly performing this activity. Okay, तो इसमें मैंने क्या किया है, इस एक्टिविटी में मैंने सिंपली क्या करा है, ऐसी चीजों का यूज करा है जो घर में इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया है। ये कार्डबोर्ड से आप बना सकते हैं ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो गई, और हॉरिजेंटल डायरेक्शन से ये इंक्लाइंड प्लेन किसी एंगल पर इस तरीके से मूव कर सकता है। सो दिस इज बेसिकली शोइंग दैट हाउ दिस इंक्लाइंड प्लेन विल चेंज इट्स एंगल। ओके, दिस इज हाउ दिस विल मूव। ओके, और दूसरी चीज मैंने क्या करी है, मैंने 3 मैच बॉक्स लिए हैं। आई हैव टेकन 3 मैच बॉक्स, एंड उन मैच बॉक्स में क्या है, मैंने देखिए एक मैच बॉक्स के नीचे फॉइल लगाया हुआ है, सिल्वर फॉइल। इट इज वेरी मच इजीली अवेलेबल एट इन योर किचन। ओके, एंड अनदर मैच बॉक्स में मैंने एक सैंड पेपर लगाया है विच इज अ लिटिल बिट रफ। ओके, एंड दिस इज बेसिकली यूज टू रब वुड्स। ओके, लकड़ियों को घिसने के काम आता है। एंड थर्ड वन, आई हैव टेकन अनदर सैंड पेपर, अनदर टाइप विच यूज टू रब द बॉल्स एट द टाइम ऑफ पेंटिंग on the balls. Okay, and it is more rough. It means it is very much rough in comparison to this regmal or sandpaper. We say regmal in Hindi or usual term, and sandpaper is general term that we use in laboratories. Okay, so we will see that how these 3 match box. Okay, these 3 match box are of equal mass. Okay. In all these match box we have taken equal masses approximately, because the number of match box, the number of sticks, okay, inside these box are same, so approximately masses are same. So we will see that how these all 3 match box behave differently on this surface. This surface is same for all 3 match box, and then we will see that how these match box behave. Firstly, I would like to explain you what is angle of repose. Okay, so angle of repose is what? I want to just show you what is angle of repose. Angle of repose is this. Okay, मैंने मान लीजिए इसको इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे रख दिया और इस पर ये मैच बॉक्स रख दिया। अब मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर इस मैच बॉक्स को, इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे धीरे धीरे राइज करता हूँ, और ये जो राइज करने पर ऐसा एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा जिस पर ये मैच बॉक्स बिल्कुल स्लाइड करना स्टार्ट करती है। धीरे धीरे मैं इसको राइज करूंगा, ये जो एंगल आया, ओके,
आपने देखा कि जिस एंगल पर ये मैच बॉक्स इंक्लाइंड प्लेन पर ये नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज. Angle of repose is the minimum angle of inclined plane at which some object just start to slide downward. That is called angle of repose. Let's see it again. Okay? आप अब देखिएगा कि कितने एंगल पर ये लगभग स्टार्ट होता है नीचे की तरफ स्लाइड करना. So I would like to do it slowly. Now it is going to come. This one. ओके तो आप इमेज से देख सकते हो कि ये एंगल कितना है. आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेटली लेस देन 30 डिग्री. ओके, इट इज लेस देन 30 डिग्री एंड यू मे फाइंड इट राइट. ओके, सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन एंगल ऑफ रिपोज इज लेस देन 30 डिग्री. इट विल बी अबाउट 27 और इट विल बी अबाउट 26 बिकॉज वी विल परफॉर्म many times this experiment, and when we will take the average of all the angles, taking readings 2 or 4 times, then we will get the angle of repose. So angle of repose must be clear to you. Angle of repose is the angle of any inclined plane with the horizontal direction at which some object just start to slide downward. यानी कि ये जिस एंगल पर, ऐसे करके मैंने एंगल बनाया, जिस एंगल पर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट होती है, उसी को ही मैं एंगल ऑफ रिपोज बोलता हूं. ओके, नाउ आई विल शो यू दैट हाउ दीज 3 मैच बॉक्स बिहेव डिफरेंटली. ओके, एंड द फ्रिक्शन फॉर ऑल दीज 3 मैच बॉक्सेज आर डिफरेंट. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले मैं ये वाला मैच बॉक्स रखता हूँ, मैच बॉक्स ये वाला रखता हूँ जो सबसे ज्यादा रफ है. इसको मैं साइड में रखता हूँ, यहाँ पर राइट साइड में रख लिया, मेरी तरफ से राइट साइड है. उसके बाद जो सेकंड रफ है उसको मैंने रख लिया, और सबसे मेरे लेफ्ट साइड में स्मूथ जो है जिसमें सिल्वर फॉइल लगा हुआ है उसको मैंने रखा है. अब मैं धीरे धीरे देखिए इन तीनों को ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन को वो करता हूं. तो देखिए सबसे पहले कौन सा नीचे की तरफ स्लाइड होता है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, और तीसरे पे. ये देखिए, तो ये आपने देखा कि सबसे ज्यादा सबसे पहले जो स्लाइड हुआ वो ये वाली मैच बॉक्स स्लाइड हुई. ओके, मेरी सिल्वर फॉइल वाली. एंड सेकेंड टाइम पे जो स्टार्ट हुई वो कम जो रफ सैंड पेपर था वो हुआ, और सबसे कम जो स्लाइड हुआ वो ये वाला तीसरे वाला जो था वो स्लाइड हुआ. इसका मतलब जो इसका नेचर है, इस वाले सरफेस का जो नेचर है, दिस इज रफेस्ट. ओके, दिस इज मोस्ट रफ. दैट्स व्हाई फॉर दिस inclined एंगल इज ग्रेटर in comparison to these two. And basically I would like to give you one important formula as well. If you will see that angle of static, that coefficient of static friction used to be tangent of inclined angle. Okay, this used to be, ये फॉर्मूला हमने ड्राइव करके बताया था. मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल होता है. दिस इज बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज. तो हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन उसका ज्यादा होगा जिसका एंगल ऑफ रिपोज भी ज्यादा होगा. तो हम देख सकते हैं कि क्योंकि ये सबसे ज्यादा एंगल पे नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट होगा. जब तक ये दोनों स्लाइड हो चुके थे तो इसने स्लाइड करना स्टार्ट भी नहीं किया था. इट मीन्स इट नीड्स मोर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ रिपोज. दैट्स व्हाई फॉर दिस coefficient of static friction will be more in comparison to these two. So let's do it again. दोबारा करके देखते हैं. हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं इसमें, और इस बार हम मैच बॉक्सेस को ऐसे रखते हैं. ओके, so see it carefully. Okay, I am increasing the angle slowly. Okay, now it is just about to slide. Yes. Okay, now you may see that which match box is ahead. This one is moving in front. It means it began to start early and then it began to start, because for this sandpaper the coefficient of static friction is greater than this smooth surface. Okay, and it has silver foil over it. Okay, and this has most angle of inclination. Okay, or angle of repose. So we may find separately angle of repose for this sandpaper, and that I am trying to do is like this. Let's see कि ये कितने एंगल पर नीचे की तरफ स्लाइड होता है. एंगल ऑफ दिस मच,
तो इसका एंगल ऑफ रिपोज आई थिंक कि ये 30 डिग्री से भी ज्यादा है, 30 डिग्री से भी ज्यादा पर ये जो है नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करता है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। ओके, इट स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रॉम दिस एंगल। ओके, सो दिस प्रूव दैट friction, basically kinetic friction and static friction both depends upon nature of surfaces. Okay, तो ये वाले का जो फ्रिक्शन होगा इस वाले सरफेस का इस वाले सरफेस पे ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में। तो ये हमने अभी प्रूव किया और हमने एंगल ऑफ रिपोज भी पढ़ा और ये फॉर्मूला भी प्रूव किया। आई होप सो यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू कि कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्टिविटीज से इस चीज को समझ सकते हैं। इजीली अवेलेबल मटेरियल होता है हमारे घरों में, उनसे भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। आई होप कि योर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन वुड हैव बीन मोर क्लियर देन अर्लियर। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग इन सच अ वे। ओके, थैंक्स अ लॉट।